So hello friends, we are here again. So we are here with a very good topic, and that is Marfan syndrome. And we will discuss all the pathology of it. So are you with me? Say yes or no. Okay, I am guessing it is as a yes. And so मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है? मार्फन्स, अगर मार्फन्स याद आए तो मार्फन्स का स्पेलिंग याद रखना है कि मार्फन्स में क्या क्या आ रहा है. तो मार्फन्स में कुछ आपको याद रहे या न रहे, मेरी ये वाली ड्राइंग है, मुझको लगता है कि आपको याद जरूर ही रह जाएंगी. तो मार्फत सिंड्रोम, MARFANS. M for mitral valve prolapse, A for aortic aneurysm, R for retinal detachment, F for the protein which is defect in this syndrome, that is fibrillin defect. The chromosome is 15, FBN1 protein defect, and A for arachnodactyly, N for negative for nitroprusside test. If nitroprusside test is positive, then the diagnosis is homocystinuria. And S for subluxated lens subluxation. So MARFANS, M for mitral valve prolapse, A for aortic aneurysm, R for retinal detachment, F for fibrillin defect or 15 chromosome, FBN1 defect, A for arachnodactyly, N for negative nitroprusside test, and S for subluxated lens. And this is the picture showing the clinical picture of the patient, that there is prominent supra. The person is very tall and having long and tapered fingers, and person is having prominent supraorbital ridges. The lens is subluxated, the retina is detached. Then in heart, mitral valve prolapse, aortic aneurysm, aortic dissection can be there. Then kyphosis or scoliosis can be there also, and many skeletal deformities also. So what is the pathology behind this? What can be the pathology? So we all know that the Marfan syndrome is connective tissue disorder, and principally it is involving the skeleton system, eyes, and cardiovascular system. And the most important thing that you have to remember is that Marfan syndrome is autosomal dominant disease. I think you all know about what are the autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked recessive, and X-linked dominant. So we will quickly review all the examples of autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked recessive, and X-linked dominant. So what are the autosomal dominant disorder? So the mnemonic is heavy dominant. H for hereditary spherocytosis, A for Ehlers-Danlos syndrome, A for achondroplasia, V for von Willebrand disease, and Y for hypoparathyroidism but pseudo. D for dystrophia myotonica, O for osteogenesis imperfecta, M for Marfan syndrome, I for intermittent porphyria, and N for neurofibromatosis type 1 and type 2. Then E for adult polycystic kidney disease, N for Noonan syndrome, and T for tuberous sclerosis. Again, heavy dominant, H for hereditary spherocytosis, E for Ehlers-Danlos, A for achondroplasia, V for von Willebrand disease, Y for pseudohypoparathyroidism, then D for dystrophia myotonica, O for osteogenesis imperfecta, M for Marfan syndrome, I for intermittent porphyria, N for neurofibromatosis type 1 and type 2, A for adult polycystic kidney disease, N for Noonan syndrome, and T for tuberous sclerosis. Then what are the autosomal recessive? So the mnemonic is chawal and pasta. Chawal pasta. C means cystic fibrosis. H means hemochromatosis. A for alpha-1 antitrypsin deficiency. W for Wilson's disease. A for albinism or adrenal hyperplasia. L for lysosomal and glycogen storage disease. P for phenylketonuria. A for alkaptonuria. S for sickle cell anemia. And then T for thalassemia. And A for all CNS disorder, neurogenic muscular atrophy, then Friedreich ataxia, then spinal muscular atrophy. A for atrophy, ataxia,
and again atrophy, neurogenic muscular atrophy, Friedreich ataxia, and spinal muscular atrophy. Again, autosomal recessive, चावल pasta, cystic fibrosis, hemochromatosis, alpha-1 antitrypsin deficiency, W for Wilson's disease, A for albinism and adrenal hyperplasia, L for lysosomal and glycogen storage disease, P for phenylketonuria, A for alkaptonuria, S for sickle cell anemia, T for thalassemia, and A for neurogenic muscular atrophy, Friedreich ataxia, and spinal muscular atrophy. Then, what are the X-linked recessive? The mnemonic is obvious female will give her boy her X-linked disorder. Obvious means ocular albinism. F means Fabry disease. W for Wiskott-Aldrich syndrome. Then G for G6PD deficiency. Her means Hunter syndrome. The boy means Bruton A gamma globulinemia. Her again hemophilia A and B. Then X-linked for Leschnian syndrome, and disorder means Duchenne muscular dystrophy. Again, ocular albinism, then Fabry disease, W for Wiskott-Aldrich syndrome, G for G6PD deficiency, H for Hunter syndrome, B for Bruton A gamma globulinemia, H for hemophilia A and B, L for Leschnian syndrome, and D for Duchenne muscular dystrophy. And what are the X-linked dominant? Though they are rare, but two examples are vitamin D resistant rickets and Alport syndrome. So these all are the examples what you have to remember for the exam, because any exam the examples can be asked. So we again discuss what is the Marfan syndrome pathology. So here the defect, the किसमें डिफेक्ट है, तो हमारी फिब्रिलिन नाम की लड़की है, उसमें कमियां है. अभी क्या करेंगे मार्फन सिंड्रोम में? Inherited defect in the extracellular glycoprotein, and that is fibrillin. अभी extracellular glycoprotein कहाँ पे होगा? तो extracellular matrix में. So there are two pathologies. फिब्रिलिन, पहला तो फिब्रिलिन प्रोटीन में डिफेक्ट है. फिब्रिलिन प्रोटीन में डिफेक्ट होगा तो जो हमारा जो माइक्रोफिब्रिलिन रिच कनेक्टिव टिश्यू जहां जहां पर होगा वहां वहां डिफेक्ट आएगा और वहां वहां के हिसाब से क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे. और दूसरा हमारा जो फिब्रिलिन जो है वो खुद तो वो बराबर बन नहीं रहा, पर वो क्या करेगा, वो खुद बराबर बन नहीं रहा तो वो किसको कहेगा? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ बीटा फैक्टर को, कि तू अब बन, मेरे बदले तू जाके बन. और वो अगर बनेगा तो वो क्या क्या करेगा? आगे आगे इन्फ्लामेशन और डिटोरियस इफेक्ट ऑफ ऑन वास्कुलर स्मूथ मसल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोटीलेज एंजाइम्स, तो वो ये करेगा. तो मेन टू पैथोलॉजीज है. पहली तो फिब्रिलिन प्रोटीन में डिफेक्ट रहेगा और फिब्रिलिन प्रोटीन में अगर डिफेक्ट रहेगा तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बी जो हमारा होगा उसमें उसका एक्टिवेशन ज्यादा होगा, उसके हिसाब से अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स आएंगे. अभी बेसिक से बात करते हैं कि फिब्रिलिन हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, हमने बोला कि वो कहाँ पर रहता है, तो वो रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में. अभी हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में अंदर जाओ तो उसमें क्या क्या रहेगा? तो देखो ये हमारा सेल है, एपिथेलियल पोर्शन है, ये हमारा होगा पूरा जो दूसरा मतलब एपिथेलियल, अगर यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है तो ये ब्लड वेसल का एपिथेलियम है. बीच में कुछ तो जगह होगी ना, सेल के बीच में दो जो कनेक्टिव टिश्यू, दो जो टिश्यू होगी उसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू रहेगी जहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स रहेगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा रहेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. ये जगह पे रहेगा हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. ये हमारा एपिथेलियल पोर्शन है, ये दूसरा एपिथेलियल पोर्शन है, बीच में जो रहेगा वो सारा होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. अभी जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा उसके मेजर टू पार्ट है, एक तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन और दूसरा है इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स. तो अभी जहां जहां पर एपिथेलियल पार्ट होगा, देखो यहाँ पर अगर सेल की एपिथेलियम बन रही है, यहाँ पर सेल के एपिथेलियम है, तो सीधा ही मैट्रिक्स उसके टच में नहीं आएगा, बीच में रहेगा हमारा बेसमेंट
मेम्ब्रेन जो सीधा जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसको टच नहीं करने देगा, बीच में दीवार बन के खड़ा रह जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जो हमारा होगा उसमें क्या क्या रहेगा, तो उसमें रहेगा टाइप 4 कोलेजन, देन लेमिनिन प्रोटीन रहेगा और प्रोटियोग्लाइकन। ये तीन चीजें रहेगी, टाइप 4 कोलेजन, लेमिनिन और प्रोटियोग्लाइकन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, वो क्या क्या करेगा, तो वो पहले वो बनेगा कैसे, वो बनेगा कैसे, थोड़ा अंदर वाले घर के देंगे, थोड़े बाहर वाले घर के देंगे। मतलब जो हमारा एपिथेलियल पोर्शन होगा, एपिथेलियल ओवरलैपिंग एपिथेलियम है, वो वाला पोर्शन, और अंडरलाइंग जो मेसेनकाइमल टिश्यू जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स में होगी मेसेनकाइमल टिश्यू, और मेसेनकाइमल टिश्यू जो होगी अंडरलाइंग मेसेनकाइमल टिश्यू और ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू, वो दोनों सिंथेसाइज करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो दोनों बीच की दीवार दोनों के बीच में बना देगी, वो रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहेगा वो क्या रहेगा, किसी सेल को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा, अगर किसी सिंगर को ग्रो करना है तो वो इंडियन आइडल प्लेटफॉर्म है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहां से कोई सेल आगे ग्रो कर सकता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच की दीवार है, किसके बीच में, एपिथेलियल पोर्शन और मेसेनकाइमल पोर्शन के बीच में। अभी दूसरा पार्ट हमारा रहेगा इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स। अभी इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है वो किससे बनेगा, फिब्रिलर कोलेजन, देन इलास्टिन और हाइल्यूरोनिन, उससे बनेगा। अभी इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स क्या है, स्पेसेस बिटवीन स्ट्रोमल सेल विद इन कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा बीच में स्ट्रोमल मेसेनकाइमल टिश्यू रहेगा हमारा डू एपिथेलियल टिश्यू के बीच में, तो उसके स्ट्रोमल सेल वहां जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे, वो फाइब्रोब्लास्ट के बीच में भी कुछ होगा ना, वो स्पेसेस बिटवीन द स्ट्रोमल सेल विद इन कनेक्टिव टिश्यू, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो हमारा इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है वो। और वो क्या मतलब, वो एमोर्फस सेमी फ्लूइड जेल जैसा रहेगा। और वो क्या क्या मूवमेंट में इन्वॉल्व रहेगा, तो वो पेरिस्टालसिस है, यूरिनेशन है, पल्सेटाइल आर्टेरियल ब्लड फ्लो, ये सब में इन्वॉल्व रहेगा। अभी जो हमारा मार्फन सिंड्रोम में कहाँ पे गलती होगी, तो जो इलास्टिन है, इलास्टिन वो जिससे बनेगा वो बनेगा हमारा फिब्रिलर प्रोटीन से, और मार्फन सिंड्रोम में ये यहाँ पर इलास्टिन में कमी होगी। तो ये सारी जो मूवमेंट हमारी है, पेरिस्टालसिस, यूरिनेशन, पल्सेटाइल आर्टेरियल ब्लड फ्लो, ये सब में ये सब बराबर नहीं होगी, पूरा हमारा जो इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है वो बराबर नहीं काम करेगा। फिर अभी मेसेनकाइमल कंपोनेंट जो बीच में रहेगा और एपिथेलियल कंपोनेंट जो बाहर रहेगा, ये एपिथेलियल कंपोनेंट, ये मेसेनकाइमल कंपोनेंट, बीच में उनको जोड़ने वाला एक ब्रिज, वो होगा इंटेग्रिन। इंटेग्रिन बीच का ब्रिज है जो मेसेनकाइमल और एपिथेलियल पोर्शन को कनेक्ट करेगा। तो मोटा मोटा याद रहेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में मेन दो चीजें हैं, एक है बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरा है इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनेगा, तो एपिथेलियल टिश्यू और मेसेनकाइमल टिश्यू के बीच की दीवार है जो उन दोनों लोगों से ही बनेगी। और उसमें क्या क्या रहेगा, टाइप 4 कोलेजन, लेमिनिन एंड प्रोटियोग्लाइकन। और बीच में 3D स्ट्रक्चर एमोर्फस जेल, सेमी फ्लूइड जेल होगा, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स जो बनेगा फिब्रिलर कोलेजन, इलास्टिन एंड हाइल्यूरोनिन से बनेगा, बराबर। अभी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा हमारा, उसमें मेन 3 टाइप के प्रोटीन रहेंगे। पहले फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, देन वाटर हाइड्रेटेड जेल, देन एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। अभी फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर में मेन क्या रहेंगे, तो कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन में भी 2 टाइप है, फिब्रिलर और नॉन फिब्रिलर। अगर फिब्रिलर है तो उसमें कोलेजन 1, 2, 3, 4, और वो मेजर कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, टेंडन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, स्किन में रहेगी, और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ देगी, बराबर। तो अगर और वो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, फिब्रिलर फिब्रिलर जो हमारा होगा पार्ट उसकी
तो वो रहेगी मेन, उसका एंजाइम है लाइसिन हाइड्रोक्साइलेज। और अगर ये एंजाइम में कुछ गड़बड़ होगी तो क्या क्या हो सकता है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, सर्टेन फॉर्म ऑफ एलर-डानलोस, मतलब वो हो सकता है। और अगर ये फिब्रिलर पोर्शन आ गया कोलेजन का, अभी नॉन फिब्रिलर पोर्शन, उसमें क्या क्या रहेगा, तो कोलेजन नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7। नंबर 4 होगा प्लानर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, नंबर 9 होगा कार्टिलेज में, नंबर 7 होगा स्किन की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। और अगर 7 नंबर का कोलेजन यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है नॉन फिब्रिलर पोर्शन में, तो स्किन की जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके मेंटेनेंस उसका बराबर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन वो होगा। दूसरा प्रोटीन जो हमारा मेजर है और जो मार्फन्स में इन्वॉल्व है वो है इलास्टिन। अब इलास्टिन, नाम में इलास्टिन है तो इलास्टिक इलास्टिक रिकॉइल देगा। वो कहाँ कहाँ पर होगा, कार्डियक वाल्स में होगा, लार्ज ब्लड वेसल्स में होगा, यूट्रस में, स्किन, लिगामेंट्स, लेंस, यह सब हो सकता है। और वो बनेगा किससे, इलास्टिक फाइबर एंड फिब्रिलर ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो हमारा कल्प्रिट है, जिसमें खामी है, जिसमें गलती है, वो है फिब्रिलर ग्लाइकोप्रोटीन, बराबर। मार्फत सिंड्रोम जो करेगा अगर उसमें गलती होगी तो। दूसरा वाटर हाइड्रेटेड जेल, जिसमें होगी प्रोटियोग्लाइकन्स एंड हाइल्यूरोनिन, और एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें होंगे फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, इंटेग्रिन। और लेमिनिन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो ये पूरा हमारा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, दो चीजों से बनेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स। सब में अलग अलग टाइप के प्रोटीन रहेंगे, कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकन, हाइल्यूरिनोन, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, इंटेग्रिन। और जो मार्फन्स में अगर गलती कहाँ पे रहेगी, इलास्टिन में। इलास्टिन बनेगा इलास्टिक फाइबर्स, और फिब्रिलरी ग्लाइकोप्रोटीन में, और फिब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारा रहेगा उसमें डिफेक्ट आएगी तो मार्फन सिंड्रोम होगा। अभी फिब्रिलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी दो टाइप के रहेंगे, फिब्रिलिन 1 एंड फिब्रिलिन 2। फिब्रिलिन 1 के साथ को क्या एसोसिएटेड है, FBN1 जीन, एंड फिब्रिलिन 2 के साथ FBN2। क्रोमोसोम 15, F फॉर 15, 15q21.1 वो फिब्रिलिन 1 के साथ एसोसिएटेड है, जो करेगा मार्फन्स। और फिब्रिलिन 2 5th क्रोमोसोम में है, और उसमें अगर कुछ गलती आएगी तो क्या होगा, कंजेनाइटल कॉन्ट्रैक्चरल एरिक्नोडक्टाइली वो होगा। और ये थोड़ा लेस कॉमन है, इतना कॉमन है नहीं, लेस कॉमन। और फिब्रिलिन में म्यूटेशन होगी, मिससेंस म्यूटेशन, जिससे हो गए हमारा फिब्रिलिन का जो पॉलीमराइजेशन होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट पॉलीमराइज होगा तो एबनॉर्मल फिब्रिलिन और रिड्यूस फिब्रिलिन पैदा होंगे। और जैसे ही ऐसे गलत फिब्रिलिन आएंगे शरीर में, वो क्या करेंगे, वो करेंगे, मैं नहीं जा पा रहा, मैं नहीं काम कर रहा, इसलिए वो भेजेंगे, उसको लगेगा अभी TGF जाके काम करेगा करेगा, तो वो भेजेंगे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को। और वो उसका ज्यादा एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन, डिलीटरेस इफेक्ट ऑन वास्कुलर स्मूथ मसल डेवलपमेंट, और वो मेटलोप्रोटीज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देगा। तो ये दो मेन पैथोलॉजी है फिब्रिलरी प्रोटीन में, और दूसरा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर उसमें। ये हमारा क्लिनिकल पिक्चर फिर से, M for mitral valve prolapse, A for aortic aneurysm, R for retinal detachment, F for fibrillin defect, FBN1 gene involved, 15 chromosome involved, A for arachnodactyly, N for negative nitrosamine test, S for subluxated lens। ये है हमारा फिगर, जिससे सब कुछ याद रहेगा ऐसा मैं मानती हूँ, पर पता नहीं। और जो क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा मार्फन्स में, वो उसका नाम है गैट क्राइटेरिया। और उसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व, मतलब कौन सी चीजें देखी जाती है, तो फैमिली में हिस्ट्री है कि नहीं, फैमिली में क्लिनिकल साइंस, कार्डिनल क्लिनिकल साइंस है कि नहीं, फिब्रिलिन म्यूटेशन है कि नहीं, फिर
जो मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑर्गन है उसमें से 4 ऑर्गन में से 2 इन्वॉल्व है कि नहीं, और माइनर अदर अनदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है कि नहीं, तो ये पूरी पूरी बातें देखी जाएगी। तो ये है हमारा मार्क 1। सी यू विथ अनदर वीडियो। दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।